सो आमी आपसे आपसे याद યશુભાઈ, આજે ભરૂચમાં મીટિંગ હતી એસઆઈઆર બાબતે, શું મીટિંગ હતી અને કઈ રીતના આગળની રણનીતિ? ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબના આદેશથી જનનાયક રાહુલ ગાંધીજી દ્વારા જે વોટ ચોર ગદ્દી છોડનો મુદ્દો ઉપાડવામાં આવ્યો હતો એ મુદ્દાને ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોએ ચૂંટણી કમિશનને હાથો બનાવીને ગુજરાતની અંદર કે જે છે લોકોના મતદારોના નામ કમી કરવા માટેનું જે છે એક કાવતરું ઘડ્યું હતું. પરંતુ એની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક સાથે મળીને મજબૂતીની સાથે આ મુદ્દાની ઉપર ગુજરાતના 5 કરોડ મતદારો કોઈની પણ ધર્મ જાતિ જોયા વગર માત્ર ને માત્ર ગુજરાતના લોકોનું લોકશાહી ડબે જે એમને મતદાનનો અધિકાર છે એ જળવાયેલો રહે, ખોટા લોકોના નામ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ ના થાય અને સાચા કોઈ રહી ના જાય એ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સમગ્ર 32 જિલ્લાઓની અંદર એક અભિયાન છેડ્યું છે જેનું નામ છે વોટ ચોર ગદ્દી છોડ. અને વોટ ચોર ગદ્દી છોડ અભિયાન હેઠળ 32 જિલ્લાઓની અંદર એક પ્રભારી એક નિરીક્ષક જશે અને ત્યાં જઈ અને એ બાબતની રજૂઆત કરી અને લોકોની અંદર જેને કહેવાય કે એક ચેતના જગાવીને આ બાબતે કલેક્ટર ઓફિસ પર આવેદનપત્ર આપી યોગ્ય આધાર પુરાવાની સાથે એ વાત કરશે. જે લોકોએ ખોટા 7 નંબરના ફોર્મ ભર્યા છે એમની સામે એફઆઈઆર દર્જ થાય, કેમ કે ખોટા ફોર્મ નંબર 7 ભરનાર લોકોની સામે 1 વર્ષની સજા અને 1 લાખનો દંડની જોગવાઈ છે. અને ખોટો ફોર્મ ભર્યો હોય, સાચું હોય ફોર્મ, તો એને પણ એનું પણ નામ કાઢવું જોઈએ, એની પણ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. પરંતુ ખોટી રીતે જે 1/7 14 લાખ ફોર્મ 14 થી 18 જાન્યુઆરી સુધી ભરી દીધા છે એને જે છે કંટ્રોલ કરવા માટે આખી જે સ્થિતિ જે છે કે એનો સામનો કરવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે દિલ્હીમાં જ અમિત ચાવડાજી છે અને થોડાક જ દિવસોમાં આપ જોશો કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પણ આ લાગણીને માગણીની સાથે અમે ત્યાં છે પિટિશન કરવાના છીએ. તમારા માધ્યમથી લોકોને એ જ અપીલ કરીએ છીએ કે 30 તારીખ સુધી મેપિંગ અને મિસમેચ વગેરેના જે પુરાવા માંગવામાં આવ્યા છે, થાક્યા વગર, ડર્યા વગર, ગભરાયા વગર તમામ લોકો પોતાના પુરાવા જે છે એ જઈને ત્યાં બીએલઓ સમક્ષ આપે. બીએલઓ તમારા ઘરે આવે તો એને પણ આપે. અને આપના જ માધ્યમથી અમારે ભરૂચ જિલ્લાની અંદર પહેલા પણ કાર્યક્રમ થયો છે અને આગામી દિવસોમાં ભરૂચથી પણ બધા જ આગેવાનો સાથે ભેગા મળીને કલેક્ટર ઓફિસની અંદર એમાં પણ આગે જે છે એ રજૂઆત કરશે. 14 से 18 तारीख में भरे गए. मामला ये हुआ कि 17 तारीख के दिन सुबह में सबसे पहले ये मैसेज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी के विधानसभा आकलाव से आया. आकलाव के डेप्यूटी कलेक्टर ने उनको कहा कि 8000 कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम के सामने फॉर्म नंबर 14 आया है. उसी वक्त अमित चावड़ा जी ने प्रेस करके सब कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को कहा कि 7 नंबर के फॉर्म के नाम से कांग्रेस के मतदाताओं को निकालने की साजिश शुरू हो गई, ये सब ध्यान दो. लेकिन वहां तक कोई एविडेंस था नहीं. रात को शादी में मैं और जुनेद भाई एक जगह शादी में मौजूद थे और हमारे अहमदाबाद से हमारे नौमान करके कार्यकर्ता उसका मैसेज आया कि जमालपुर खाड़िया विधानसभा में अभी 150 फॉर्म आए हैं और सब जिंदा है और उनको मरण पामिल बता दिया. जुनेद भाई ने हमने क्या कि भाई ये इस तरह 7 नंबर भर नहीं सकते. और उस मरतबा फिर मैंने क्या कि भाई अपने इसका काम करें, अपना जो ईआरओ है उससे बात करो कि दरियापुर में तो नहीं आए. मैंने मेरे ईआरओ दरियापुर में बात की तो उसने डरते डरते ये बताया कि 28,000 फॉर्म दरियापुर विधानसभा में आए. 28,000. फिर पता चला जमालपुर में 22,000. हिम्मत सिंह पटेल के वहां 45,000, शैलेश परमार के वहां 37,000. यानी सबके सब कांग्रेस के जहां गढ़ है वहीं पर ही आया है. तो तुरंत ही हमने सबको बुलाया. इमरान खेड़ा वालों को मैंने फोन किया, मैंने भाई शादी ब्याह सब छोड़ो, जल्दी से पहले मेरे ऑफिस पे आओ. आके हम लोग
लिख रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन को रजूआत करे कि ये जो गलत तरीके से फॉर्म भरे गए हैं इसको तात्कालिक स्थगित किया जाए। हम हमारा ड्राफ्टिंग कर रहे थे, रात के लगभग 1 बजा था और उस वक्त पे शाकिर मलिक का और एक कोई राणा है, मुस्लिम कोई लड़का राणा है जम्मू सर में, ये 2 लोगों के मैसेज आए कि हमारे यहाँ 9,000 फॉर्म आए हैं और हम जब पब्लिक में गए और लोग जो जिंदा थे उनके वीडियो उतार रहे थे तो मामलतदार ने बोला कि वीडियो मत उतारो, अभी तो हम फॉर्म वापिस ले लेते हैं, बाद में कार्रवाई करेंगे। इनको भी पता नहीं था कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन तुरंत मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये डरे, इसे ही वीडियो साकिब मलिक और राणा ने जो उतारी जम्मू सर में, तो मामलतदार डर गया। मैंने जुनेद भाई को बोला, मैंने जुनेद भाई ये देखो छोटे से कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी बात पहुंचाई, मैंने कहा फॉर्म नंबर 7 निकालो, उसमें क्या लिखा है? तो फॉर्म नंबर 7 में लिखा है कि जिसने भी फॉर्म 7 नंबर भरा है एविडेंस उसको पुरावा दे रहे हैं। इसने लिखा कि मैं मृत्यु हूं, साकिर भाई ने लिखा मेरे लिए, तो साकिर भाई को मेरी डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी जगह रहने गया हूं, मैं जम्मू सर में नहीं, मैं वागरा में रह रहा हूं, तो इनके बताना पड़ेगा जम्मू सर में नहीं, क्या सुबह तो वागरा में रहते, जम्मू सर का नाम लिखा, मतदार यादी का नाम देना पड़ेगा। जुनेद शेख साहब ने तुरंत ही ये निकाला। फिर हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली, वेबसाइट में लिखा हुआ था कि गलत माहिती के आधार पे अगर फॉर्म भरोगे और तुम साबित नहीं कर सकोगे तो 1 साल की जेल, 1 लाख रुपए दंड या दोनों हो सकता है। उसी वक्त मैंने बोला अब सब काम रोक दो, सबसे पहले ये पोस्ट बनाओ कि जहां भी फॉर्म नंबर 7 भरे हैं, अगर गलत भरे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ पुलिस फरियाद दाखिल करेगी। और जैसे ही हमने वायरल किया तो जो अहमदाबाद में जिन्होंने फॉर्म भरे थे 7 नंबर, वो लोग तुरंत ही बोलने लगे कि फॉर्म तो हमने भरा ही नहीं है, इसमें तो हमारी सही नहीं है, हमारा तो एपिक नंबर ही नहीं है, क्योंकि जेल में कौन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कमलम ऑफिस में बैठ के सॉफ्टवेयर के आधार से ये फॉर्म भरे, शेख, सैयद, पठान, वोरा, सीधा मालूम पड़ जाएगा, दलित भी मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस के हमारे उजरियत भाई क्षत्रिय ठाकुर समाज ने बहुत सब लोगों के सामने भरा है, यानी इन्होंने धर्म में ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस के जो भी समर्थक है हिंदू मुस्लिम सबके सामने किया है। तो इसके लिए तुरंत ही ये लोग ने किया। उसके बाद तुरंत ही अमित भाई और हम लोग कॉन्टेक्ट में थे, दिल्ली भी बात हुई, कार्यक्रम भी पूरे गुजरात में जितना थे उसको शुरू करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी के लिए मुकुल वासनिक जी से मैंने और अमित चावड़ा जी ने कहा कि राहुल जी से कहिए कि इस पर ट्वीट करें। राहुल जी ने कहा मुकुल वासनिक जी को कि पहले ऑफिशियल फिगर आ जाए, उसके बाद राहुल जी ट्वीट करें, क्योंकि जननायक और देश का सबसे बड़ा नेता विपक्ष का, वो कोई ट्वीट करता है तो कोई ऑथेंटिक आधार पे कर सकता है, ऐसे हवा में कोई ने कह दिया वो नहीं। जैसे ही परसों इलेक्शन कमीशन ने जाहिर किया आंकड़ा कि 12,29,000 लोगों ने फॉर्म भरे 7 नंबर में, तुरंत वो प्रेस कटिंग जो था, प्रेस का जो इलेक्शन कमीशन का, वो मैंने मुकुल वासनिक जी को भेजा। मैंने कहा कि साहब ऑफिशियल फिगर आ गई है, 12,29,000 है। अमित भाई ने भी बात की, मुकुल वासनिक जी से क्या दोपहर तक राहुल जी इस पे ट्वीट कर देंगे। दोपहर में राहुल गांधी जी ने वो ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद गुजरात इलेक्शन कमीशन थर-थर कांपने लगा है। उसको मालूम है कि वोट चोरी के मुद्दे पे राहुल गांधी किसी को छोड़ने वाले नहीं। दिल्ली हाईकमान से अपनी ये भी बात करी अमित भाई ने, हमने कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी शामिल होना चाहिए। बहुत सीरियस लिया वेणुगोपाल जी ने, मुकुल वासनिक जी ने, तुरंत ही अमित चावड़ा जी को, अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर और कांग्रेस के सांसद हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी। और आज इसी सिलसिले में हमारे गुजरात के अध्यक्ष अमित चावड़ा दिल्ली गए हुए हैं। आज उनके अभिषेक मनु सिंघवी के साथ रूबरू मीटिंग है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाएगी। 7 नंबर का मामला अभी इन्होंने अटका के लटका दिया है। जब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया 2 दिन, पिछले जुमेरात जुमा 2 दिन तक जो है हरीश शुक्ला जो गुजरात के सीईओ है, उसको दिल्ली जाके इलेक्शन कमीशन के पास बैठना पड़ा तो भाई इसमें क्या करें।
क्योंकि जिग्नेश मेवाड़ी ने भी कह दिया कि अगर दलित के सामने ये मामला है तो मैं एट्रोसिटी करूंगा, क्योंकि किसी को तुम प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को तुम मजबूर नहीं कर सकते। तो अधिकारी भी डर गए कि ये तो एट्रोसिटी होगी तो जेल में हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म नंबर 7 की गाइडलाइन है कि 10 से ज्यादा फॉर्म एक BLO दे नहीं सकता है। तो 28-30,000 फॉर्म तुमने एक साथ लिए कैसे? अधिकारी फंसता है इसके अंदर। दूसरा उस पर लिखा है, अब कांग्रेस ने भी मांग की कि जिसका भी अगर किसी ने फॉर्म नंबर 7 भरा है, अगर उसने सही भरा है तो उसकी तहकीकात पहले तुम फॉर्म भरने वाले को बुलाओ, फरियादी को, मतदार को नहीं। उसको पूछो कि ये तुमने फॉर्म नंबर 7 भरा है, ये हकीकत सही है? अगर सही है तो इसके पुरावे दो। अगर वो सही पुरावे देता है तो भी जिसने गलत फॉर्म भरा है उसके सामने कार्रवाई करो। पर उसने फॉर्म क्योंकि 12,39,000 में है, 12,38,000 गलत फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने भरवाया, टोटल गलत। तो फिर वो 12,38,000 लोगों के सामने 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके सामने फरियाद दाखिल करें। और यही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जा रही है कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 गलत भरे हैं उनके सामने FIR दर्ज करने का काम ERO करे, इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन जब ये फॉर्म पब्लिक में बंटने लगे थे, जैसे जम्मू सर की बात थी, उस वक्त में हमने साकिर भाई से ये कहा था कि अगर भी ये लोग फॉर्म लेके आते तो फिर वो 12,38,000 लोगों के सामने 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके सामने फरियाद दाखिल करें। और यही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जा रही है कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 गलत भरे हैं उनके सामने FIR दर्ज करने का काम ERO करे, इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन जब ये फॉर्म पब्लिक में बंटने लगे थे, जैसे जम्मू सर की बात थी, उस वक्त में हमने साकिर भाई से ये कहा था कि अगर भी ये लोग फॉर्म लेके आता है तो वो फॉर्म पे से फोटो पाड़ लो और उसमें नाम देख लो किसने फॉर्म भरा है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन पे जाके फरियाद कर दो। अगर पुलिस स्टेशन फरियाद नहीं लेता है तो अर्जी के रूप में देके आ जाओ, कोर्ट में इस गुना को चैलेंज कर सकते हैं। ये अपने कांग्रेस की लीगल कमेटी ने कहा है, डायरेक्ट कोर्ट भी फरियाद लेगी। अब गुजरात का इलेक्शन कमीशन असमंजस में भाजपा की तरफेण करने जाते हैं तो उनके सामने एक्शन होगा, अधिकारियों के सामने, और कार्रवाई करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने पेज प्रमुख है सब जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सब काम पेज प्रमुखों ने किया है। और इनके नेताओं के, इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री है रत्नाकर, ये सुनने में आया है कि रत्नाकर ने ही ये पूरा का पूरा स्कैंडल पूरे गुजरात में जाकर के बनाया है। मंदिरों में मीटिंग की, वाड़ियों में मीटिंग की, और वो मीटिंग के अंदर इस तरीके से लोगों को भड़कलाया RSS और भाजपा के लोगों ने कि तुम ये नाम निकलवाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। चोरी करके स्वर्ग में तो मैंने सुना नहीं कि कोई जाता हो, लेकिन बरगलाने में ये लोग बहुत माहिर है। हमने जब इलेक्शन कमीशन में अमित चावड़ा जी, हम, जुनेद भाई, हमारी टीम पूरी, शैलेश परमार, इमरान खेड़ावाला जी, हम सब मिले, उस वक्त हमने डिमांड ये की थी कि सबसे पहले आपको 14 नंबर के फॉर्म, 7 नंबर के फॉर्म जिसने भरे हैं उसकी पूरी यादी दो। दूसरा कि अगर फरियाद सही है तो मत निकाल दो, अगर फरियाद सही नहीं है तो जिसने गलत फरियाद करी है उसके सामने जेल में डाल दो। और इसका पूरा आंकड़ा विधानसभा वाइज हमको दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक विधानसभा वाइज आंकड़ा दिया नहीं है। किसने फॉर्म भरे हैं वो दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने खाली इतना ही आंकड़ा दिया कि 12,39,000 लोगों के 7 नंबर फॉर्म आए। हमारे लिए आंकड़ा ही काफी है। अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी कि 12,39,000 कौन है, किसने भरा है, किसके सामने भरा है, उस लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम में जा रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज दिल्ली में अभी बैठे हुए हैं और ये मामला चल रहा है। कल सत्य सिंह गोयल साहब के वहां, जब उनके वहां बैसवाई के अंदर मैं भी गया था, वहां पे राजेंद्र सिंह राणा भी थे,
उसी वक्त मुकुल वासनिक जी ने मेरे को तुरंत पूछा कि एसआईआर कंट्रोल में आया है नहीं। मैंने कहा थोड़ा बहुत ये लोग अस्पष्ट में है, अभी तक डिसीजन ले नहीं पाते, बोले नहीं ले पाएंगे। और मैंने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला, तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि मैंने रिश्ता करा दिया है लड़का लड़के का, अब गुजरात वाले जाओ, अभिषेक मनु सिंह जी को हमने काजी बना दिया है, उनके पास जाके अपनी फरियाद लिखवा दो, हम तुम्हारे साथ में, राहुल जी भी और साथ में। और तो यानी बहुत पार्टी ने इसको सीरियस लिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सीरियस लिया है। तमाम गुजरात में हर जगह अलग अलग सबने कार्यक्रम किया। मैंने अमित चावड़ा जी को सजेशन दिया कि हम लोग कार्यक्रम अलग अलग जगह कर रहे हैं, तो वोट चोर गद्दी चोर तो अब आया है, गुजरात में आया है। उस दिन से ये पोस्ट बना के मैंने ही भेजी थी, और उस दिन से जिस बैनर पर हमने काम करना शुरू किया है कि वोट चोर गद्दी चोर, पूरे गुजरात के 32 जिले में इसी बैनर के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सूचना से हमको आंदोलन भी करना है और कलेक्टर ऑफिस जाके आवेदन पत्र भी देना। ये प्रदेश समिति की गाइडलाइन है। अगर किसी के मन में ये हो कि मसला हिंदू का है, किसी के मन में हो कि मुस्लिम का है, नहीं, ये मसला गुजरातियों का है, गुजरात के 5 करोड़ मतदाताओं का है। कब तक हम हिंदू मुस्लिम वाली बात को लेकर के डरेंगे? कांग्रेस की थोड़ी तकलीफ ये रही है